Assalamu alaikum first year. Today we shall start book 3. Book 1 is consisted of a collection of short stories, whereas book 3 consists of plays and poems. Before starting any poem, let me tell you the weightage of poetry section in your final paper. First of all, you would be given 7 questions from poetry section. You will have to attempt 4 out of these 7, and 4 questions would certainly have 8 marks. Then you would be given 1 stanza from any one of 20 poems. You will have to explain that stanza with reference to the context, and it would be of 5 marks. The important thing here is to tell you that you have 20 poems in your syllabus. You would be given only 1 stanza from any one of these poems, and there would be no choice for you, only 1 stanza. So we have to prepare each poem very carefully. So 4 questions from poetry section, 1 stanza having 5 marks, and 2 synonyms from this section. So overall the poetry section would be of 15 marks in your final paper. Now let me tell you the further division of 5 marks of a stanza. The reference would be of 2 marks. Reference would be of 2 marks. 1 mark for the title of the poem, 1 mark for the name of the poet. That is called reference. Reference would be of 2 marks. Then context. Context would be of 1 mark. 1 mark. Then explanation. 2 marks for reference, 1 mark for context. अब कितने मार्क्स बचे? सिर्फ 2 नंबर. 5 में से सिर्फ 2 नंबर बचे, and your explanation would be of 2 marks only. So avoid by giving unnecessary details regarding a stanza. अब एक्सप्लेनेशन को उर्दू में कहते हैं तशरीह, और जब तशरीह का लफ्ज़ आता है तो ज़हन में आता है कि जी जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा शायद मार्क्स आ जाएंगे. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश पेपर. 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन है. अच्छा लिखो, मुनासिब लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव लिखो, एंड अवॉइड रेपिटिशन. हाँ, एक चीज़ है जो आपको प्लस मार्क्स देगी कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से, वो ये है कि गिवन स्टैंजा में जो लिटरेरी क्वालिटीज़ होती हैं वो डिस्कस की जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ सिमिली, फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ मेटाफर, फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, the use of symbolism, the use of satire, the use of irony, etc. So there would be a specific lecture for you on how to explain with reference to the context. But for today I shall start the very first poem. The very first poem is The Rain. Is the rain. Rotate your screens.
Rotate your screen so that you have a closer look at the text of the poem. The rain is upon page number 51 of your textbook. You have already read this poem in 9th or 10th class. The poem is written by W.H. Davis. Before starting the poem, we shall read the theme of the poem, which is at the end of the poem. The poem is a musical display of rain. The poem is a musical display. Musical display means melodious sound. A sound which is very pleasant. Musical sound, melodious sound. पोइम जो है ये बारिश की रिमझिम या खूबसूरत आवाज़ के बारे में है. अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर. और बारिश क्या है, जो कि फितरत का बहुत बड़ा फिनोमिना है. इट हैज़ अ सिम्बोलिक मीनिंग आल्सो. द पोइम हैज़ आल्सो अ सिम्बोलिक मीनिंग. मीन्स अपर मीनिंग and deeper meaning. The poem can be interpreted at two levels: apparent meanings and deeper meaning. And the deeper meanings would be the symbolic meanings of the words or the poems. ठीक है. पोएम की अलामती अहमियत भी है. अब अलामती अहमियत क्या होती है कि जो गिवन वर्ड्स हैं they have deeper and wider and vaster meanings. कि जो वर्ड दिए हैं उनका मतलब लफ्ज़ी मतलब से कहीं ज़्यादा गहरा और वसी होता है. सो वी नोट डेट कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज़म का यूज़ होता है. ठीक है. अब मैं एक दो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूँगी आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इंग्लिश लिटरेचर winter is a season, but in literature it stands for death, it stands for grief, it stands for stillness, it stands for silence, it stands for inactivity. In the same way, spring, the word spring is a season, but symbolically the word spring stands for happiness, it stands for joy, it stands for activity, etc. In the same way, loin is an animal, but the symbolic significance of the word loin is that it carries the meaning of courage and bravery. So in English literature, words have a lot of meanings. एक लफ्ज़ के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं. बज़ाहरी मतलब, और जो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं वो बज़ाहरी मतलब से हट के हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको मैं एक और बड़ी जनरल सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम कोई मूवी देखते हैं. ठीक है. अब उस मूवी में क्या है कि अब अगर उस मूवी में कोई एक्सीडेंट होने वाला है. ठीक है. अब उस मूवी में क्या दिखाएंगे, एक्सीडेंट से पहले बादल गरजेगा, फिर बिजली बरसेगी, फिर बारिश होगी. ठीक है. डैट इज़ द सिंबल ऑफ ऑन कमिंग एक्सीडेंट. इन द सेम वे इंडियन मूवीज़ में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि किसी की तस्वीर नीचे गिर के टूट जाती है. ठीक है. डैट इज़ सिंबल ऑफ हिज ऑन कमिंग डेथ. इसी तरह जब उन्होंने कोई बाहर का सीन दिखाना होता तो पहले फ्लावर्स दिखाते हैं, बीज दिखाते हैं, फूल दिखाते हैं, खूबसूरत मनाजर दिखाते हैं. तो वो किस चीज़ का सिंबल होता है? ऑन कमिंग हैप्पीनेस, आने वाली खुशियों का सिंबल होता है. तो हमारी लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज़ हों या पोइट्री हो, बल्कि पोइट्री में ज़्यादा सिंबॉलिकली वर्ड्स का यूज़ होता है. तो कोशिश है कि आपको साथ साथ बताया जाए कि वर्ड्स के सिंबॉलिक मीनिंग क्या हैं. तो आप प्लीज़ देखिएगा उसको. नो लेट मी कंटिन्यू. द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट. नाउ नेचुरल फिनोमिना of the fall of rain, and what is happening there, that the leaves on the upper level
कि जो ऊपर वाली सतह पे जो पत्ते हैं, गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट, दे रिसीव द रेन वाटर फर्स्ट and quench their thirst and satisfy और fulfill their thirst। अब क्या सीन चल रहा है? रेनी डे, बारिश का मंजर। अब फिनोमिना क्या है कि जो अपर लीव्स हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, वो रेन वाटर पहले रिसीव करते हैं और वो अपनी प्यास बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दे पास ऑन, दे ट्रांसफ़र द ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स टू द लीव्स, उन पत्तों को एट द लेवल बीनीथ, जो कि नीचे हैं। पहले वो अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर वो रेन ड्रॉप्स को ट्रांसफ़र करते हैं उन पत्तों की तरफ जो कि उनसे नीचे हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गया अपरेंट मीनिंग। अपर लीव्स quenching their thirst and dropping the raindrops to the leaves which are below than the upper leaves। ये हो गया अपेरेंट मीनिंग। हमें लग रहा है जी पत्ते पानी पी रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं उसके बाद वो नीचे वाले पत्तों को पानी दे रहे हैं। ये हो गया सिंपल और अपेरेंट मीनिंग। नाउ वी शैल रीड इट्स सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। These lines may offer a metaphor as well। अब इन लाइंस को हम मेटाफर के तौर पे भी ले सकते हैं। जिस तरह ऊपर मैंने आपको टर्म समझाई, सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है। नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द मीनिंग ऑफ मेटाफर। यू हैव रेड दिस टर्म इन उर्दू मीनिंग इस्तारा। मेटाफर को आपने उर्दू में पढ़ा है इस्तारा, कि किसी के लिए कोई वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं जैसे वो वही चीज़ हो, जैसे वो वही चीज़ हो। हम किसी को किसी दूसरी चीज़ के साथ इस तरह से मिलाते हैं कि वो डायरेक्ट हम उसको उस वही वाली चीज़ जो है वो बना देते हैं। ठीक है, ओके। द रिच एट द अपर लेवल गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट एंड वट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द लेवल बीनीथ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस इज़ द मेन एसेंस और द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। The rich at the upper level, the rich at the upper level, अब जो एलीट क्लास में, जो हाई क्लास में अमीर लोग हैं, गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, उनको हर चीज़ का मौका पहले मिलता है। दे हैव ऑल द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द सोसाइटी एंड वट एवर रिमेन्स, और जो कुछ बचता है, जो बचा कचा रह जाता है, ट्रिकल डाउन, वो कतरा कतरा करके देते हैं टू द पीपल, उन लोगों को एट द लेवल बीनीथ हु आर पुअर। ठीक है, अच्छा। अब जो है आपका अपर द लीव्स ऑन द अपर लेवल, दे स्टैंड फॉर रिच पीपल। लीव्स at the level beneath, they are the symbol of poor people। बड़े पत्ते पानी पीते हैं, ज़्यादा रिसीव करते हैं, अपनी प्यास पहले बुझाते हैं, जो बचता है वो नीचे फेंक देते हैं। इसी तरह मुआशरे में जो अमीर लोग हैं वो हर गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पहले अवेल करते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, रोज़गार की है, पैसा कमाने की, इवन तालीम, महंगी तालीम हासिल करने की, वट एवर अपॉर्चुनिटी वी हैव इन आवर सोसाइटी, द रिच इन्जॉय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले अमीर उसको इन्जॉय करते हैं, फिर जो बच जाता है, अब जब वो इन्जॉय करते हैं, दे इन्जॉय टू देयर सेटिस्फेक्शन, सही तसल्ली की हद तक इन्जॉय करते हैं। अब जो बच जाता है, रिमेन्स रेमिनेंट्स, बचे कच्चे हिस्से, अब जो बच जाता है, अब वो गरीबों के लिए रह जाता है। अब वो गरीबों को देते उस तरह अबंडेंस में नहीं देते, आल्दो दे देमसेल्व्स एंजॉय इन अबंडेंस, पर गरीबों को वो देते हैं ट्रिकल डाउन, कतरा कतरा करके, टपका टपका के वो देते हैं, यानी उनको तरसा तरसा के देते हैं। एंड दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, द डिस्टिंक्शन इन द सोसाइटी, द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। However, the scene of the sunshine afterwards, ठीक है,
So the first stanza tells us about the social discrimination in the society, but the second stanza tells us about the hopeful scene of sunshine. लेकिन क्या है कि बाद में धूप निकलेगी, इज़ लवली, वो मंज़र बहुत प्यारा होगा, एंड अ सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर एवरी वन ऑफ अस, और वो मंज़र हम सब के लिए जो है वो खुशी का बायस होगा। ठीक है, अब स्टेंजा में मैं आपको बताऊंगी कि सनशाइन की सिग्निफिकेंस क्या है एंड वाई दिस सीन वुड बी लवली फॉर अस। बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी शैल हैव अ लुक एट इट्स सिंपल पैराफ्रेजिंग, एंड सिंपल पैराफ्रेजिंग इज राइट आफ्टर द थीम। द पोएट सेज that he hears the leaves which are full of rain। तो पोइट हमें बताता है कि वो सुन सकता है पत्तों के पानी पीने की आवाज़ और पत्ते जो कि बारिश से भरे हुए हैं। ही सेज, पोइट कहता है, that the rich leaves on top are full of water, के ऊपर वाले बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो पानी से भरे हुए हैं। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर विच फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑन द लीव्स, अब पानी का गिरना, स्प्रिंकल उसका वो कतरों की सूरत में गिरना, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन द लीव्स बिलो, अब नीचे वाले पत्तों पे जो पानी गिरता है वो गिरता है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। क्रिएट्स अ म्यूज़िक विच इज़ स्वीट टू हियर, अब पोइट को जो रेनफॉल का जो साउंड है, रेनफॉल की जो साउंड है, इट सीम्स टू बी वेरी प्लेजेंट टू द पोइट। Now I am on page number 52. When the sun appears again after the rain stops, अब क्या होगा, बारिश थमेगी तो सन रीअपेयर होगा, सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी। द वंडरफुल लाइट स्पार्कल्स, तो क्या होगा कि जो सूरज की अमेजिंग लाइट है, इट विल स्पार्कल ईच ड्रॉप, हर कतरे को रोशन कर देगी। इन द एंड द पोइट विशेस, आखिर में पोइट एक ख्वाहिश करता है, और वो ख्वाहिश क्या करता है, द सन शाइन्स इन फुल ब्राइटनेस, कि जब भी सूरज निकले वो इट विल शाइन इन इट्स फुल ब्राइटनेस, तो ये पूरी की पूरी अपनी आबोताब से चमके, एंड मेक्स द सीन लवली, और वो मंजर को बहुत ही प्यारा बना दे। ओके, अब आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा व्हाट्स द पोएम इज़ अबाउट, द थीम ऑफ द पोएम, द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द पोएम। ओके, नाउ लेट मी कम टू द real text of the poem. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. I hear means perceive sound with the ears। rich mean abundant, ज़्यादा होना, घने होना, बड़े होना। abundant, in plenty, beneath, under, below, sweet, pleasant, melodious, ड्रिंकिंग क्या हो गया, घूंट भरने की आवाज़, पानी पीने की आवाज़। ठीक है, ये होगा हमारी गल्पिंग साउंड, गल्पिंग GULPING, गल्पिंग साउंड। ओके, now note the first thing. The poem starts with first person pronoun I, and when we are to attempt the question answers or we are going to explain the stanza, we shall transfer the first person pronoun into third person pronoun, like the poet hears, he hears, W.H. Davies hears। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में पोएम होगी तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। ये बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं।
आई कभी ही, इस तरह से बहुत गलती करते हैं। तो आपका वो थ्रू आउट प्रोनाउन जो है वो चेंज होता जाएगा, आई ही में चला जाएगा, मी हिज में चला जाएगा, हिम में चला जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नाउन हम प्रोनाउन जो है वो चेंज करते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। इन दिस पोएम, in this stanza, the poet tells us that he hears the leaves that are full of rain. I hear rich leaves on top. He tells us that he hears the big leaves at the top. The leaves in abundance on the top are giving the poor beneath. Those leaves are giving the rainwater to the poor leaves which are below than them. They are giving them rainwater drop by drop. Now, the rich leaves are drinking rainwater. When they satisfy their thirst, they trickle down rainwater on the leaves which are below and which are not in plenty. Drop after drop trickle down. एक एक कतरा करके उनको दे रहे हैं. So again it's the short form of it is. It is a sweet noise to hear. Now, the sprinkling of water which falls drop after drop on the leaves below creates music which is sweet to hear. These green leaves drinking near, the sound of rain falling on leaves gives the impression as if the leaves are drinking water with gulping sound. The poet has very beautifully depicted one of the beautiful scenes of nature. Till this, I have simply paraphrased the stanza. Apparent meaning: rich leaves drinking rainwater. Apparent meaning: they are transferring rainwater to the poor leaves below. Apparent meaning: that the rainwater is creating melodious sound for the poet who is standing nearby. Now, we shall explain the same stanza at symbolic level. Basically, by presenting the scene of big leaves and the leaves below, by presenting this scene, the poet is giving us the hint of the social discrimination in the society, the distinction in the society, the division of society into the rich people and in the poor people. Leaves, rich leaves, metaphor for rich people. The poor leaves, metaphor for the poor people. And we have already read that drinking rainwater symbolically stand for enjoying golden opportunities by the rich people in the society. And whatever remain, that is left for the poor people in the society. So the poor people are always deprived of the golden opportunities, and if they are provided in any case, they are never satisfied, or they are never given any type of satisfaction with that remaining opportunities. And here another literary quality is used, and that is, the poet says
leaves drinking near. So leaves cannot drink water. Drinking is the quality which is attributed to the human beings. But the poet says that the leaves are drinking water. It means the poet has personified leaves by giving them human quality. By giving them human quality. अगर किसी जो है वो ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी जाए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ह्यूमन क्वालिटी दी जाए तो उसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. अब इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या यूज़ हुआ है? सिम्बोलिज़म, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. और एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, डैट इज़ द यूज़ ऑफ स्वीट नॉइज़. स्वीट नॉइज़, टू अपोजिट आइडियाज़. Noise can never be sweet. Noise is always an unpleasant sound. शोर किसको कहते हैं? unpleasant sound को. ठीक हो गया. लेकिन वो उसको कह रहे स्वीट नॉइज़. अब टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को पोइट मिला रहा है, उसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन. यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ठीक है. I shall stop here. We shall continue the second stanza along with the exercise tomorrow. आपने इसका थीम लर्न कर लेना है. That would be your context for the exam. वो लर्न कर लें. पोइट का नाम विद करेक्ट स्पेलिंग, पोएम का नाम प्रिपेयर करें. कल हम एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे. रिकैप भी दूंगी और नेक्स्ट भी आपको कंटिन्यू करवाऊंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.